اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، آج ہم سیدھی سادی عوام کو پوری دنیا کی، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیارے ہندوستان کی یا اپنے پیارے صوبے اتر پردیش کی یا اپنے ضلع الناو کی عوام کو سب سے زیادہ جو ٹھگا جا رہا ہے، جو ٹھگے میں آ گئی ہے، وہ ہے سیلف فریڈم، یعنی خود کی آزادی۔ ایک تو آزادی وہ ہے جو ہمارے ملک کو ملی ہے، لیکن اس آزادی کے بعد ہم کتنے آزاد ہیں یہ آپ سبھی لوگ آپ جانتے ہیں اچھے سے۔ بہرحال یہاں پر خود اپنی آزادی، اپنی زندگی کی آزادی، اس کو جو ہے مہرہ بنا کر کے اس سے اتنا ٹھگا گیا ہے کہ جتنی مصیبتیں آج ہمارے اور آپ لوگوں کے سامنے یا پوری دنیا کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں، سو صرف یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے خود اپنے مالک ہوں گے، کوئی ہمارا کہنے والا ہے، جو ہمارے سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے، اور جہاں جائیں گے وہاں کوئی ہمیں ٹکنے والا نہیں ہے۔ ہم جس سے پیار اور محبت یا کانٹیکٹ میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ فیمیل ہوں یا کوئی بھی ہو، بہرحال اس میں کوئی ٹکنے ٹاکنے والا نہ ہو، تو اس کا نام کہتے ہیں آزادی۔ اور ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہماری آزادی پہ ہے۔ ہم کس طرح سے اپنے ماں باپ کا سلوک کریں، یہ بھی اپنی آزادی ہونا چاہیے، چاہے ہم اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کریں یا نہ کریں، یا اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں ان کو، یعنی بردھا آشرم میں بھیج دیں۔ یہ خود یہ اپنی آزادی، اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیز آئی ہے مغرب سے۔ مغرب آپ سمجھتے ہوں گے، یہ مان لیا جو امریکہ ہے، لندن ہے، اور مان لیا ادھر سے یہ ساری کی ساری آئی ہیں۔ وہاں پہ اسی طرح کی مان لیا آزادی تھی، اور اسی کو دیکھ کر کے وہاں کا پہناوا، وہاں کی شادی برات، وہاں کی آپس میں دوستی، وہاں کی اتنا ماحول ایسا ہو گیا تھا، اگر کسی کے امریکہ میں کسی والدین سے پوچھتے، اچھا بتاؤ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہ ہاں ٹھیک تو ہے، لیکن کیا بتائیں میری بیٹی کو کہ کوئی مالے بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ یعنی افسوس کر کے وہ کہتی ہم کہ ہماری لڑکی سے کوئی پیار کرنے والے جو ہے لڑکے نہیں ہیں۔ اگر لڑکے ہوتے، دیکھو سب کے ہیں، جتنے کالج میں پڑھنے جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہے، سب کے ہیں، لیکن کیا بتائیں ہماری لڑکی کے کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے کہ اس کو مالے لے جاتا، گھماتا، ٹہلاتا، موج مستی کرتا، اور جو سمجھ میں آتا اس کے ساتھ کرتا۔ یعنی اس کی مالیہ زندگی پورے طور سے اس کی مالیہ آزاد ہو جاتی، جیسے وہ جو ہے مالیہ لڑکی چاہتی ویسے وہ رہتی، جیسے لڑکا اس کو رکھتا ویسے رہتا۔ لیکن عزیز محترم، دور کے ڈھول سہانے، یہ تو ہم نے وہاں کا سب کچھ مالیہ دیکھ لیا، بڑی آزادی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے نتائج جو آج سامنے آ رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے پھیلتے سب ہر جگہ پھیل گئے ہیں۔ جی ہاں، اس سے کوئی بھی دیش شاید ایسا بچا ہو جہاں پر یہ جراثیم نہ پہنچ گئے ہوں، اور وہاں کی وہ جو کچھ اس سے ریئیکشن آتا ہے وہ وہاں کے نہ آئے ہوں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ امریکہ میں یہ تھا کہ اگر آج وہ کسی کی بیوی بنی ہے، پتہ نہیں کل وہ اس کی بیوی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کو ہر وقت خدشہ لگا رہتا تھا، اور مان لیا اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور جو اس طرح سے مان لیا جو لوگ آپس میں خلط ملط میں رہتے تھے، کالجوں میں یا جہاں مان لیا فیکٹریوں میں، یہاں یا دوسرے آفسوں میں، یا جہاں ان کو اتنی آزادی تھی، وہ اپنی زندگی کو ان کے ساتھ میں، یعنی مرد اور عورتیں جس طرح سے چاہتے گزارتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، ہم نے ویڈیو میں سنا تھا کوئی اچھے بھلے انسان سے کہ 80%، یعنی 80%، یعنی 100 میں 80 بچے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہاں کہ ہمارے باپ کون ہیں۔
फिर सिर्फ जब उन्होंने आंख खोली, जब वो मिले तो उनकी माँ मिली। और माँ के ऊपर इतना बर्डन, इतना बोझ आ गया, उसको बच्चे को पालना पोसना वो तो अलग की, मतलब उसको दूध पिलाना, उसको 9 महीने पेट में रखना, ये तो अलग की बात रही। लेकिन उसके बाद में जब बच्चा सियाना हो जाता है तो उसका बाप का तो पता नहीं, वो तो वो छोड़ छाड़ के चला गया, उसने अपना ताल्लुक़ अपना ख़त्म कर दिया जब वो बच्चे वाली हो गई। अब उसका सारा बोझ उसकी माँ के ऊपर पड़ने लगा। जी हाँ, अब जब माँ पे पढ़ने लगा, वो कहाँ से कमाए, कहाँ से लाए, कहाँ से बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ये सारी जिम्मेदारियाँ जब माँ के ऊपर आ गई। अब आँख खुली कि अरे ये क्या हो गया। अब धीरे 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 मामला ये होने लगा कि अब ये इतनी जब 80% ऐसी तादाद हो गई कि उनकी माँ उनको संभालने और देखने लगी, तो अब मामला बड़ा कठिन हो गया। अब मामला पांसा पलटा ये कि अब देखें, अरे अब देखें कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म ऐसा है कि जिसके अंदर ये आज़ादी नहीं है, जो मान लिया ये आज़ादी हम लोगों ने जो है आज़ादी पा करके ये सब कुछ किया है। तो उन्होंने सारे धर्मों का मुताला किया। जी हाँ, सारे धर्मों का मुताला किया, और मुताला करने के बाद में, जी हाँ, मुताला करने के बाद में जब उन्हें पता चला कि इस्लाम मज़हब एक ऐसा है कि इसमें किस तरह से उसके बंधन होते हैं, किस तरह से कितनी आज़ादी दी जाती है, कितनी आज़ादी नहीं दी जाती है। और हाँ, जी हाँ, और एक और बताते चलें, जैसे आजकल हिंदुस्तान में जो होता है, लड़का हो उसके बाप का क्या नाम है। तो अगर अमेरिका में अगर 80% लोगों से पूछ दिया जाए, अच्छा बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो उनके अब्बा भी नहीं बता पाएंगे। तो बहरहाल यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब मामला जब आँख खुली, अब क्या हो रहा वही उसी अमेरिका में, उसी जो है मगरिब में, अब जो मान लिया जो शादी करता है, जी हाँ, अब गौर से सुनने की बात है, जो शादी करता है तौर तरीके के हिसाब से उसको वहाँ की जो है हुकूमत मुआवजा देती है, और उसके पालन पोषण का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदार होती है। अब सरकार के सामने भी बड़ी परेशानियाँ, बड़ी मुसीबतें आने लगी। तो ये करके उन्होंने ये कर दिया है। तो कुछ यहाँ यही नहीं, बल्कि हमने ये भी सुना था कि जब कोई शादी बाकायदगी के साथ में सरकार की निगाह में रह करके शादी करता है, और उसको हमेशा रखने का वादा करता है, उसके लिए मकान, उसके लिए वजीफ़ा, उसके लिए पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त, ये सब कुछ उसका इंतज़ाम किया जाता है। यानी अब जो है लालच दिया जाता है कि नहीं मैंने इस तरह से शादी करना होगी। तो अज़ीज़ मोहतरम, अब वही जो बात वहाँ पर थी, अब वही बात अपने हिंदुस्तान में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यही हाल देख रहे हैं। अब एक के कितने बॉयफ्रेंड होते हैं। हालांकि हम तो इसके चक्कर में कभी पड़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, जो ये वीडियोस देखते हैं, जो लोगों से बातें सुनते हैं, जो तकरीरें सुनते हैं, उससे पता चलता है अल्लाह की पनाह, अरे ये सब कुछ हो रहा है। तो मोहतरम, अब इस वक्त जो मान लिया हमारे बच्चे, हमारा माहौल जो गंदगी की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी की देन है। हमारे बच्चे वहाँ का माहौल देखते हैं, वही पहनावा पसंद करते हैं, वही प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। वही बाद में क्या होता है, कितनी बदनामी होती है, घर मकान छोड़ के जाना पड़ता है, बाद में फिर ऐसी मुसीबतें सामने आती हैं कि माले बताने के लायक नहीं, हुआ आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो मोहतरम, ये चीज़ होती है कि जब तक हम शऊर के साथ, समझदारी के साथ में, जो ईश्वर ने, जो प्रभु ने जो कायदा बनाना है, कानून बनाया है प्यार मोहब्बत करने का और शादी और ब्याह करने का, तो जब तक हम उस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे सामने यही समस्याएं, यही जो है मुसीबतें आती रही हैं और आती रहेंगी। तो मोहतरम, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ फ्रीडम का मतलब यही नहीं है कि हम जैसे चाहें अपनी मलिया ज़िंदगी गुजारें। हाँ, एक कायदे और कानून के मुताबिक। अब एक मलिया अमेरिका की बात याद आ गई, क्योंकि एक वहाँ पर जो है मुसलमान जो है वज़ू जो है बना रहा था,
तो वो पास आया, जब वो अपने गर्दन के ऊपर जो वज़ू बनाते हैं तो ऐसे हाथ फेरते हैं पीछे के गर्दन के ऊपर, ये जैसा तरीका है जो है वज़ू में बनाने का। बहरहाल ऐसे वो वज़ू बना रहे थे, तो वो देखता पास आया, और जब वो मान लिया वज़ू बना के चुके तो पूछा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो भैया वो मले डर गया था, और सोरिया मुसीबत कौन सी खड़ी हुई है, तो बताया हम फला जगह से हैं। कहा आपने मान लिया अच्छा ये बताइए आपके वहाँ जो है वो जो पागल खाने कितने हैं? तो वो और चौंक गए, ये कौन सा सवाल है, मैं वज़ू बना रहा हूँ, आकर के पूछा और कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा वज़ू बना रहा था, हमारी उसमें यही हुक्म है इस्लाम में नमाज़ पढ़ने से पहले, तो वही कहना बना रहा था। लेकिन उसके जवाब में उसने ये क्यों पूछा कि बताओ तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो तुम्हारे वहाँ जो है पागल खाने कितने हैं? मैं डर गया, और सॉरी ये कौन सी बात कहेगा, और मान लिया उसी में हमें अपने पागलों में हमको भी शुमार करेगा। तो समझते हो उसने क्या कहा? कहा कि भाई अब हमको बताना पड़ा। कहा हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में 8-10 होंगे मुश्किल से। तो कहा हाँ जी हाँ, ये जो मालिया गर्दन के ऊपर आपने मसा किया है, जिसको आप मसा कहते हैं, हाथ फेरा है गीला पानी करके, इससे यहाँ की रगे, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैंने ये पढ़ा है कि मालिया यहाँ पर गर्दन के मसा करने के ऊपर या हाथ फेरने पर ये दिक्कतें होती हैं। कोई आदमी जल्दी पागल नहीं होता, उसका दिमाग अपसेट नहीं होता, उसको औल फौल नहीं बकता है, और वो मालिया सही साठ रहता है। और हमारे मुल्क में कितने हैं उसने नामालूम कितने 100 बता, याद नहीं सही तादाद को, उसके हमारे वहाँ इतने हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में बता कि वजह यही है कि अज़ीज़ मोहतरम। और उसी जो है चलते एक बात ये बता दें, जो है मालिया मगरिब का असर, यानी उसका असर हमारे यहाँ पर भी इतना पड़ गया, जितना हम अपने बच्चों को दीन ना सिखा करके दूसरी डिग्रियाँ उनको कर देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन तो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच वही होती है जो मालिया मगरिब वाले होने के। इसीलिए उनके माँ बाप, चाहे उनकी आमदनियाँ करोड़ों में क्यों ना हो, वो बेचारे तड़प करके अपने घर में उनकी जो है वो वफ़ात हो जाती है, और अपने बच्चों की सूरत देखने के से भी माल बेचारे महरूम रह जाते हैं। बाद में जब पता चलता है कि तो तुम्हारे माता पिता का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो वहाँ पे आते हैं, बस पैसे दे दिया, रसूमात अदा कर दी, हो गया, अल्लाह खैर। तो अज़ीज़ मोहतरम, इस्लाम इसके बिल्कुल एक ख़िलाफ़ है, बरअक्स है कि मालिया अपने घर में रहिए, अपने दीनी तालीम हासिल करिए, जो तरीका बताया गया अपने माँ बाप के साथ वो करिए, और मालिया इसी तरह से जब मालिया आखिरी मरते दम तक उनकी दुआएं लेते रहे अपने माँ बाप की। ये सब कुछ इस्लाम में सिखाया गया। तो अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मालिया मगरिबी तहज़ीब हमारे अंदर घुस गई है, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, पाक परवरदिगार इनको सबके दिलों से निकाल दे और सही अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।